نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میٹرو ون نیوز کے سبھی ناظرین، حاضرین، سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری میٹرو ون نیوز کی اسپیشل رمضان کی ٹرانسمیشن رمضان الکریم پروگرام آسان رمضان میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ بالکل جی، اور میں ہوں مختار احمد۔ ارسلہ آپ نے آج نام نہیں بتایا۔ ہاں، میں وہ جو بیچ میں ہم بریک ہوتا ہے نا اس میں بتا دیتے ہیں۔ زبردست، چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ رمضان کے مطابق ہم بات کریں گے، رمضان کے حوالے سے کر رہے ہیں آسان رمضان کی ٹرانسمیشن جو کہ جاری اور ساری، اور آج 19واں روزہ سمجھ لیں کہ ہم سحری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بہت جلدی یہ سیکنڈ عشرہ بھی ہمارا گزر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسی طریقے سے نیکیاں کرنے کی توفیق دو، اور رمضان المبارک آنے والا سال بھی ہمیں نصیب کرے تاکہ ہم اسی طرح نیکیوں کے ساتھ اپنی تمام گناہوں کی بخشش کے لیے جو ہے اور مغفرت کے لیے دعائیں بھی کر سکیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، مفتی عثمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فاضل جامعہ صفا کراچی سے تعلق ہے، قرأت سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ شکل ہی بتا دیتی ہے ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور اب درخواست کریں گے محمد سمیر صدیقی سے نادر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، محبوب خدا پیکر و انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، جب کوئی نگی کوئی سہارا غم خار ہمارا، جب کوئی نگی کوئی سہارا غم خار ہمارا، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کے بیدم یہی تو پانچ ہے منظور کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کیا بات رضا اس چمن سان کرو کے، کیا بات رضا اس چمن سان کرو کے، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کے ہر رنگ میں ہو سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और आगाज़ तो हो ही चुका है। सबसे पहले स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्स की जानिब बढ़ेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे रूह ज़मज़म के हवाले से, जिनका कहना है कि इनका जो मशरूब है उसकी ख़ास बात यह है कि इसमें ज़मज़म का पानी मिला हुआ है। और आपका बहुत शुक्रिया। एच ए बिल्डर्स का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। 120 और 200 गज़ के प्लॉट जो कि डॉक्टर सोसाइटी बनाने के लिए जा रहे हैं, और ख़ास करके जो है वो बाउंड्री वॉल सोसाइटी है, इनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इसके साथ साथ फवाद सिद्दीकी, जिनका अटायर मैंने आज पहना हुआ है और रोज़ाना की बुनियाद पर इन्हीं का हम अटायर जो है वो पहन रहे हैं। और इनका जो ख़ास करके मॉल है वो सायमा परी मॉल है, और इस सेकेंड फ्लोर पे इनकी शॉप मौजूद है। आयशा इरफान का शुक्रिया अदा करेंगे। हुरा टेक्नोलॉजीज़ को डील कर रही हैं, मुख्तलिफ लैपटॉप्स और मुख्तलिफ पाम टॉप्स और इक्विपमेंट्स को डील कर रही हैं, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया और इसके साथ साथ मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रही हैं। जी, और अब मैं शुक्रिया अदा कर लूँ। जो ड्रेस मैंने इस वक्त वेयर किया हुआ ये है जी मुश्क हरम कटोर का। 3 तलवार पर इनका आउटलेट है, बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है, और साथ ही साथ ये इंटरनेशनली भी डील करते हैं। और कस्टमाइज अगर आप कोई ड्रेस बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। रफ़ाया पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन शूज़ आप घर में बैठे इनसे ज़बरदस्त कलेक्शन ले सकते हैं। रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों का अंदाज, और नहीं बरसों की रिवायत आज का अंदाज, और अलसफ़ा हेयर ऑयल, बालों के मसाइल तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सफ़िया ज्वेलर्स सोने और चांदी में ये डील करते हैं। चलिए, ज़बरदस्त, बिल्कुल जी, प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं और बयान। अच्छा जी, बिल्कुल अरसला, बड़ी दिनों से हम देख रहे हैं, ज़ाहिर हम लोग सहाफ़त की से भी वाबस्ता हैं, तो हम देखते हैं कि कौमियत का बड़ा जिक्र हो रहा होता है, लोग लसानियत की जानिब बढ़ रहे हैं। फ़िरका वारानियत एक ऐसी मैं बोलूँगा वबा है जो फैल चुकी है कि जो माशरे को ख़राब कर रही है। ऐसे में इस्लाम में उज़्बियत और इसके साथ साथ कौमियत के हवाले से क्या बयान दिया गया है? मुफ्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नाइब मुदीर भी हैं दारुल उलूम फ़तहिया सिंध कतार के। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, बलोच, पठान, पंजाबी, फिर सिंधी, फिर अलग अलग इलाक़ों के अंदर जो है लिसानियत और कौमियत और असबियत के ऊपर लोगों को इकट्ठा करके ब्रांगेख्ता किया जा रहा है। और फिर जो है मेरी ज़बान ये है, तुम्हारी ज़बान ये नहीं, बसों से उतार कर कत्ल किया जा रहा है, ट्रेन को रोका जा रहा है, और इस बुनियाद के ऊपर कि ये जो है फ़ौजी हैं और हम जो है ना मुल्क के पाकिस्तान के वफ़ादार हैं। ये मुल्क को तोड़ने की साजिशें की जा रही हैं। याद रखें, असबियत, कौमियत, लिसानियत के ऊपर अगर इस बुनियाद के ऊपर लोगों को इकट्ठा करना, उसके बाद फिर मुल्क को पाकिस्तान के रिलेटेड और इसके अफवाद से रिलेटेड लोगों को बरांगेख्ता करना, नौजवान और इस कौम के जवानों को जो है मुश्तइल करना, ये कानूनन और शरअन कुरान और हदीस के रूह से नाजायज़ और हराम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन दआ इला असबियतिन, वो शख्स हम में से नहीं है जो असबियत की तरफ लोगों को बुलाता है। वलैसा मिन्ना मन क़ातल इला अला असबियतिन, वो शख्स हम में से नहीं है जो कि असबियत के ऊपर तुम्हारी ज़बान ये, मेरी ज़बान ये, तुम्हारा रंग ये, मेरा रंग ये, तुम्हारा इलाका ये, मेरा इलाका ये, तुम्हारी कौम ये, मेरा कौम ये, इस बात के ऊपर दूसरों को कत्ल करता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो हम में से नहीं है। वलैसा मिन्ना मन मात अला असबियतिन, वो शख्स हम में से नहीं है जो इस बात के ऊपर दावेदार बन के लड़ता है, भिड़ता है, मर जाता है, हम में से नहीं है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हालात से रिलेटेड 1400 साल पहले फरमा दिया था कि ये हालात जाहिलियत के ऊपर मबनी है, और हमें तरगीब और दर्स क्या दिया, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो अगरचे वो जालिम हो या मजलूम हो। अगर वो जुल्म कर रहा है उसको जुल्म से रोको, अगर वो जुल्म का शिकार है, मजलूम है, तो फिर उसकी इआनत और मदद करो। अल्लाह ताला ने भी कुरान करीम इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, आपस में शीर व शक्कर और मिठास के साथ रहा जाए। आज क्या हो रहा है, हम एक दूसरे के साथ असबियत के ऊपर लड़ रहे हैं या कौमियत के ऊपर लड़ रहे हैं, और फिर ख़ास तौर पे किसी की ज़ात के साथ अगर हमें इख्तिलाफ हो रहा है, हम पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए हैं, बाहर के एजेंडों के जो है ना हम यहाँ पर आलेकार बन रहे हैं। लिहाजा इस आपके शौक़ के तवस्सुत से मैं इस मुल्क मिल्लत के नौजवानों को और जवानों को से मैं अपील करूँगा
کہ غیر کے आलाकार बनने से और उनके आलाकार बन के फिर मुल्क को पाकिस्तान के तोड़ने से बाज रहें और फिर जो है अपने आप को मुल्क को पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के साथ मुखलिस रखें। ये आपके कौम का असासा हैं, ये इस मुल्क को पाकिस्तान के पिलर्स हैं। अल्लाह ताला इन बातों को समझने की और हम सबको इस बात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुबह आमीन। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे मौजू पर आज जो है वो बयान दिया। इस वक्त की हमारी सबसे बड़े मसाइल ही यही हैं, ये जो तासुब फैला हुआ है, ज़्यादातर मसाइल की वजह यही है कि हम एक दूसरे को रंगो नस्ल और ज़बान पर नफ़रत की निगाह से देखते हैं। कत्ल तो खैर एक्सट्रीमिस्ट हो गया, लेकिन वैसे भी नफ़रत कर रहे होते हैं, अंदर भी बड़े बुग़्ज़ रखा हुआ होता है कि इसकी जो है वो ज़ात कुछ और है, इसकी नस्ल कुछ और है, ये किसी और ज़बान का बोलने वाला है। एनीवेज़ ज़बरदस्त टॉपिक। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ पर। रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान, और मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार। में जैसे कि हम अभी वक्फे में बात कर रहे थे कुछ बम्पर प्राइजेस के हवाले से, ऐसे बिल्कुल। और ज़ाहिरी किचन का सेगमेंट हमारा होता है जिसमें बेस्ट किचन स्टार, हाँ, उसमें जो जीतने वाला है उसको क्या मिलने वाला है, ये है असल बात। बेस्ट किचन स्टार कंपटीशन 4.0 जो कि किचन कैसल की जानिब से पेश किया जा रहा है मेट्रो 1 न्यूज़ पे, और इसमें इस वक्त जो सबसे बम्पर प्राइस की बात करेंगे तो रूह ज़मज़म की जानिब से बाइक मिलेगी उसको, जो कि पहला इनाम जीतेगा। दूसरा और तीसरा जो इनाम जीतेगा उसको सफिया ज्वेलर्स की जानिब से गोल्ड प्लेटेड इयररिंग्स भी मिल सकते हैं और भी बहुत कुछ, कोई भी ज्वेलरी का आइटम छोटा मोटा मिल सकता है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपनी शेफ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या रौनक लगी है बताएं किचन में आज? जितनी अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, हाँ, जो कि पहले तो हम इनके नाम वगैरह पूछ लेते हैं। आप अपना नाम बताइए और ये भी बताइएगा कि आप क्या बना रही हैं। मेरा नाम शेफ़ आयशा है और आज मैंने प्लेटर बनाया है। उसमें मेरे पास है तवा चिकन और ये शाशलिक विद फ्राइड राइस जो मैं बना रही हूँ। ठीक हो गया। अब आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है आमा साबिर। आज मैं चिकन की वाइट कढ़ाई बनाने लगी हूँ। चिकन वाइट कढ़ाई, क्या बात है भाई, जबरदस्त। वाह, वाइट कढ़ाई बन रही है और तवा चिकन बन रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे कॉस्ट आयरन कुकवेयर की, जो कि जब हम किचन में आते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है बर्तनों की। बर्तनों की जब हम बात करें, कॉस्ट आयरन कुकवेयर कोई आम नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है, बल्कि इसमें ये कुदरती नॉन स्टिक कुकवेयर है। और इसमें जो खाना है हमारा वो तकरीबन 30 मिनट तक के हमारा खाना गर्म रहता है। इसमें हम सर्विंग भी कर सकते हैं, इसमें कुकिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जो बात करेंगे फ़ाइन क्रीम की, जिसमें हमारी विप क्रीम भी है और कुकिंग क्रीम भी है। कुकिंग क्रीम से हमारी कुकिंग हो रही है। और इसके बाद बात करेंगे हम देसी घी की। अगर आप चाहते हैं कि आपके खाने में मज़े मज़े की खुशबू आए और 10 घरों तक की पता चले कि भाई हमारे घर में खाना बन रहा है, तो आप शाहीन डेयरी का मक्खन भी यूज़ कीजिए अपने खानों में और इनका असली घी भी यूज़ कीजिए। और आज हमारी कुकिंग जो हो रही है, इसमें ऑयल जो हमारा यूज़ हो रहा है वो रिवायत कुकिंग ऑयल यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। चलिए जी, आप मेरे ख्याल है स्टार्ट करें। हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर दिया है। चलिए ठीक है, हम आते हैं थोड़ी देर बाद शेफ आपकी तरफ। बिल्कुल जी, मेहमान गिरामी की जानिब बढ़ेंगे और ज़ाहिर सबसे पहले हम वेलकम करेंगे राना गुलजार ताज को, जो कि पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, पॉलिटिशियन भी हैं और ख़ास करके सरगर्म रहते हैं। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं राना गुलजार ताज। अस्सलाम वालेकुम सर। और इसके साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामरान नूर साहब, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं HA बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। सर ज़ाहिर आपसे स्टार्ट देंगे। राना गुलजार साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, पॉलिटिशियन है, किस तरीके से सरगर्मियाँ चल रही हैं, खास करके अब जब रमज़ान शुरू हो गए हैं? देखिए, रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह, और ज़्यादातर सरगर्मियाँ ठंडी हो जाती हैं सियासी, तो क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में दिन में तो कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, शाम में भी तकरीबन तरावी के बाद ही एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इतनी ख़ास कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस टाइम तो सभी लोगों को रमज़ान में अपनी एक्टिविटीज़ कम कर देनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक रमज़ान है और साल में एक बार आता है, तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए, रोज़े पाबंदी से रखने चाहिए और लोगों की हेल्प भी करनी तो पूरे साल चाहिए, लेकिन लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए। जो मुस्तहिक हैं उनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं हर किसी से, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके साथ आफ्तार करें, जो लोग गरीबों के साथ उनके साथ बैठें, ज़्यादातर उनके साथ शेयर करें, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर है। सियासी एक्टिविटीज़ तो पूरे ज़माने में चलती रहे, सारा साल चलती हैं। जिस तरह से मुफ्ती साहब ने अभी बहुत अच्छी बात की है, जो मुल्क पाकिस्तान में जो हो रहा है वो इस वक्त बड़ी गंभीर सूरत हाल है। पाकिस्तान इस वक्त आग और खून की होली खेली जा रही है, ये बड़े अफसोसनाक अमल है
اور مرنے والا بھی شہید ہے، مارنے والا بھی شہید ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اور اس طرح سے جو لوگ مطلب دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کے لوگ مارے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شہید ہو گئے، اور اگر ادھر کوئی لوگ مارے جاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ شہادت کا پیمانہ ہی نہیں پتہ کہ شہادت ہے کیا چیز اور شہادت کا رتبہ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور پاکستان ظاہر ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان اگر نہیں ہوگا تو ہم کہاں کھڑے ہیں. ظاہر ہے جتنی مسلم ریاستیں ہیں، تمام جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ کبھی ہمارے دوست ہو نہیں سکتے. ہم اگر کسی کے ہاتھوں میں کھیل کر اور اپنی ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ریاست کو بھی چاہیے کہ اگر کہیں خامی ہے اور کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو ان سے نیگوسیشن کی جائے، ان کو گلے لگایا جائے اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، اور ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہتھیار پھینکیں اور بات چیت کا راستہ اختیار کریں. کوتاہیاں بالکل ہوئی ہوگی کہیں نہ نظریات کہیں. کے اوپر بات کرتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہم دیکھتے ہیں جماعتوں کا ہوتا ہے اپنی جگہ پہ، اور اسی کی بیس کے اوپر سیاست چل رہی ہوتی ہے. ایسے میں جب نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، کیا رمضانوں کے مہینے میں یہ نظریاتی اختلافات ایک طرف رکھ کے آپ تمام لوگ بھی اپوزیشن ہو گئی، آپ ہو گئے، سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ اختلافات تو نظریاتی ہوتے ہیں، ذاتی نہیں ہونے چاہیے. بالکل. اور ہم تو ذاتیات پر بھی چلے جاتے ہیں، تو ہمیں ذاتیات پر بھی نہیں جانا چاہیے، اور ذاتیات پر جانا اچھا عمل نہیں ہوتا. کسی کی فیملی کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں ہوتا. ہمیں بالکل وہ بات کرنی چاہیے جو اصولوں پر ہے، اور اصولوں پہ سودے بازی نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی، سیاسی ہوں. دیکھیں ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے تمام صحابہ اکرام، تمام پیغمبروں کی زندگی سیاسی گزری ہے، اور انہوں نے سیاست کو، ہم نے بدقسمتی اس ملک میں ایک ایسا سیاسی کر دیا کہ جس سے جھوٹ پر مبنی. میں سمجھتا ہوں سیاست جھوٹ نہیں ہے، سیاست نام ہے خدمت کا، اور قومی وسائل کو اکٹھا کر کر اور عوام کے اوپر خرچ کرنا، یہ اصولوں کی سیاست ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہماری ریاست میں کسی کو بھی بھوکا نہیں رہنا چاہیے. یہ سب کو سوچنا چاہیے. ہم دین ہمارا جو ہمیں سکھاتا ہے وہ بہت شائستگی والا دین ہے، بہت اچھا دین ہے، اور ہم اس کی تشریح اگر کریں اور اس کا اگر ہم اردو ترجمہ پڑھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو اردو ترجمہ پڑھنا چاہیے. عربی میں ہمیں نہیں پتا کہ عربی میں کیا لکھا ہے، لیکن اردو میں جو ترجمہ ہے، ہمارے علماء اکرام نے جو ترجمہ کیا ہے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. اور جب ہم اس ترجمے کو پڑھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50% تو ہماری زندگی صحیح ہو جائے گی. تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. سیاست کا مقصد جھوٹ نہیں ہے، سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے، عوامی رائے عامہ کے اندر اس کی راہ کو ہموار کرنا ہے، اور عوامی وسائل کا صحیح طریقے سے عوام پر استعمال کرنا ہے. یہی ہمارا مقصد ہے، اور یہی سیاست کا مقصد ہونا چاہیے. لیکن جو سیاست کا ایک نقشہ بگاڑ دیا ہے یہاں پہ، میں سمجھتا ہوں اس کے نقشے کو صحیح کرنا چاہیے سب کو. کیونکہ سیاست کو جو ہم لوگوں نے ایک اچھے پیرائے میں نہیں سمجھتی عوام، کیونکہ اس لیے کہ پولیٹیشین نے اس کا چہرہ خراب کر دیا ہے. تو ہمیں جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں ہم نے کیا کہا ہے، اور کل آنے والے الفاظ ہمیں واپس نہیں لینے چاہیے کہ جو الفاظ ہم آج ادا کر رہے ہیں تو ہمیں اس طرح سے وہ ادا کرنے چاہیے کہ جس میں کسی کی دلاداری بھی نہ ہو اور بہتر انداز میں وہ کام ہو سکے. بہترین. بالکل جی، کامران نور کی جانب بڑھیں گے کیونکہ ظاہری ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں ایچ اے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. ہم ریگولر بیسس کے اوپر آپ کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. آج ظاہری آپ خود موجود ہیں، ہمیں بتائیں ایچ اے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کیا کیا کر رہا ہے؟ تھینک یو مختار بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا دعوت دینے کا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک جو سوسائٹیز بنی ہوئی تھی، آپ نے شاید سنا ہوگا پاک آرمی کی بھی بنی ہوئی ہے، پاک فضائیہ بھی بنی ہوئی ہے، اور مختلف شعبہ جہات ہیں ان کی سوسائٹی بنی تھی. تو ہمارا جو آنر ہے سی او حسن منامی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹرز کے لیے ابھی تک کچھ نہیں ہوا. ٹھیک. تو ہمارا مقصد تھا کہ ڈاکٹر کو بھی کچھ اس طرح کی سوسائٹی اور اس طرح کا ماحول پرووائڈ کریں جس میں وہ بھی پرسکون رہ سکے. تو انشاءاللہ ہوپ یہ ہے کہ آپ آئیے گا، وزٹ کریے گا، دیکھیے گا، اور ان لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں. ایک پڑھا لکھا ماحول اور ایک پڑھے لکھے جو ماحول ہے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. فیسلٹی کیا کیا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ فیسلٹیز وہاں پر ڈاکٹر ہاؤسنگ سوسائٹی میں آلریڈی جو ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہاسپٹل ہیں، کالج ہے، اسکول ہیں، تمام چیزیں. اور سب سے بڑی بات جو ہب بن رہا ہے آپ کا
M10 पे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मेन रोड की सोसाइटी है ये। सही, M9 के आगे M10 जहाँ है वहाँ पे आपका M10 जो आपका सी पैक में शामिल है रोड, गवादर को कनेक्ट कर रहा है ना, सही। तो दीगर सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए हम कोई अप्रोच करना चाहे आपको तो कैसे अप्रोच करें? सर हमारा ऑफिस है मेहमार में भी है और मॉडल कॉलोनी में भी है। ज़बरदस्त, बिल्कुल जी। और आगे ठीक हो बढ़ेंगे, गया, आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद सुमैर सिद्दीकी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। का बोल बंदे आका का बोल, जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र नबी तू करता जा, ये जिक्र बड़ा अनमोल। आका बोल बंदे आका का बोल, ऐसा दिन भी आ जाए सरकार के दर पर बैठे हो, सरकार के दर पर बैठे हो, लब खामोश जुबां बर जाए आंसू अर्जा करते हो, उनके दर पे रोने वाले, उनके दर पे रोने वाले, दिल से कुछ तो बोल। आका बोल बंदे आका बोल, जब से होश संभाला है मैं उनके नाते पढ़ता हूँ, उनके नाते पढ़ता हूँ, गुस्ताखी ना हो जाए मैं संभल संभल के चलता हूँ, मैं संभल संभल के चलता हूँ। माँ की दुआओं का सदका, माँ की दुआओं का सदका है नात का ये माहौल। आका बोल बंदे आका बोले बंदे आका बोल बंदे आका बोल। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम, वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे वापस आ रहे, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से आपको करते हैं खुशामदीद मेट्रो 1 न्यूज़ पर रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम, प्रोग्राम आसान रमज़ान, और मैं हूँ अरसला। बिल्कुल जी, मैं हूँ मुख्तार अहमद। और जैसे कि प्रोग्राम अब जो हमारा आगे बढ़ रहा है, जहाँ पे हमारे सेगमेंट जिसमें हम किचन कैसल के हवाले से बात करते हैं, ये कंपटीशन जो कि 4.0 होने के लिए जा रहा है, बल्कि अब तकरीबन इख्तिताम पज़ीर है, क्योंकि आज नवा जो है हमारा समझ लें कि कंटेस्टेंट हमारे आए हैं। 18 कंटेस्टेंट हो चुके हैं, कल लास्ट हमारे समझ लें 2 कंटेस्टेंट होंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट की बात करें तो बम्पर प्राइस में बाइक जो है वो गिफ्ट की जाएगी रूह ज़मज़म की जानिब से, और इसके साथ साथ जो हमारे रनर अप 2 होंगे, सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले, उनको सफ़ेद ज्वेलर्स की जानिब से गोल्ड ज्वेलरी का एक गिफ्ट दिया जाएगा। बिल्कुल जी, दिया जाएगा। और अब जो है शेफ, अस्सलाम वालेकुम अगैन। वालेकुम अस्सलाम। कौन जीत गया है, कौन हारे, जल्दी बताइएगा आज जल्दी से बता देते हैं। हाँ, क्योंकि आज नजर आ रहा है। अच्छा, ओके। तो हमारा जो इरादा था कि हम टेस्टिंग भी चेक करेंगे और प्रेजेंटेशन भी चेक करेंगे, तो हमारे साथ जो जा रही हैं वो आज आयशा हमारे साथ आगे जा रही हैं, ठीक, और आमना जो है उनको हम शील्ड और सर्टिफिकेट देंगे। जबरदस्त, क्या बात है। और ये कौन सी है जो रनर अप है हमारी? आयशा ने बनाया है तवा चिकन, वो जीती है जी, ठीक है। और आयशा को हम बाद में देंगे। नहीं, मैं तो कह रही हूँ रनर अप जो है उनका नाम क्या है? आमना। मैं आमना का नाम इसलिए ले रही हूँ कि आमना ने मुझे गजरे पहनाए। थैंक यू आमना। आमना ने गजरे पहनाए। हाँ, मैंने कहा मैं ऑनर्ड, थैंक यू तो करूंगी भाई, बहुत प्यारा उनका जेस्चर, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच। मेरी तरफ से आप जीती हैं। क्या बात है, जबरदस्त। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त हम अपने मेहमान की जानिब बढ़ते हैं। राना गुलजार ताहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिशियन हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। सर, अवामी मसाइल पे बड़ी बातें हो रही होती हैं, अवामी मसाइल के हल के लिए भी बड़े काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है सियासत, हमने कहा ना, नज़रियात के साथ साथ जो इल्ज़ामात की सियासत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अवामी मसाइल के ऊपर ज़ाहिर पीपल्स पार्टी बहुत सारे काम कर रही है, कुछ सीधा ऐसे कोई काम जो कि अब आने वाले मुस्तकबिल के लिए किए जा रहे हो, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा। देखिए जी, बात यह है कि काम तो बहुत सारे हो रहे हैं और पूरा शहर इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है और लोगों को बड़ी दुश्वारियां भी हैं, और इंशाअल्लाह थोड़े दिन बाद इसी दुश्वारियों का मसाइल भी हल हो जाएंगे, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। गैस का एक बड़ा मसला था, गैस की तमाम लाइनें चेंज की जा रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक किया जा रहा है,
اور بہت جلدی یہ ساری چیزیں درست ہوں گی، اور تنقید کا سامنا بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ سیاست میں تو یہ ہوتا ہے، کام بھی ہوتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، اور جہاں پر تنقید ہوتی ہے اصلاح وہیں پر ہی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. جب تنقید ہوتی ہے تو اسی سے اصلاح پیدا ہوتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی بالکل عوامی رائے عامہ کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کی خدمت کر رہی ہے، صحت کے شعبے میں بھی کام کر رہی ہے، اور ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہی ہے، اور خاص طور پر پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لیکیج ہے، لیکیج کے جو مسئلہ ہے شہر کا وہ بہت زیادہ ہے کہ وہ لاکھوں گیلن پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس پر میئر کراچی بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور جو شہر کا انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ شہر کے اندر بہت زیادہ گندگی ہے. تو اس گندگی کو صفائی کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، بالکل تنقیدیں تو ہوتی رہتی ہیں سیاسی. فنڈز کی شکایت ابھی بھی ہے؟ دیکھیں جی، فنڈز کی شکایت تو ہمیشہ رہے گی، کیونکہ کراچی شہر اتنا بڑا ہے کہ یہ پوری ایک ریاست ہے. 3 سے 4 کروڑ کی آبادی ہے، اور اتنا بڑا شہر ہے تو فنڈز کی شکایت تو ہوگی، کیونکہ ایک دن میں آپ کراچی شہر کا وزٹ نہیں کر سکتے. اور اتنی پسماندہ اور کچی آبادیاں ہیں کہ کراچی آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا شہر ہے، اور اس میں فنڈز جتنا ہوگا وہ کم ہے. لیکن سر ہم عام جو عوام ہے نا اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ مل کر سیاست میں آتے ہیں اور پھر ایک ساتھ ایک دم سے شکایت وہی والی شروع ہو جاتی ہے جو لوگ مل کے نہیں آتے ان کے جیسی بالکل سیم. دیکھیں جی، وہی فنڈز نہیں، آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فنڈز کا رونا تو سبھی کا ہے، لیکن جو لوگ اقتدار میں رہ کے جا چکے ہوتے ہیں وہ بھی یہی شکایت کرتے ہیں، اور جو آتے ہیں وہ بھی. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اقتدار سے رہ کر گئے ہیں تو تمام معاملات تو آپ کو پتہ ہیں، تو اس کے بعد وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک روایت ہے، اور اس روایت کو دفن ہونا چاہیے، اور ایک اچھی روایت پیدا ہونی چاہیے. یہ ہم جو ایک دوسرے کے اوپر وار کرتے ہیں نا، تو یہ وار نہیں ہونے چاہیے، تعمیر کی طرف جانا چاہیے، اور ہمیں آپس میں ریکنسلیشن پر توجہ دینی چاہیے. ایک دوسرے کی گریبان اور ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑ دیں گے اور بہت سی ایسی گفتگو کرتے ہیں، تو ہمیں ایسی گفتگو سے اجتناب برتنا چاہیے، کیونکہ یہ اچھا عمل نہیں ہے. اس سے عوام کے اندر بھی برائی جنم لیتی ہے، اور ہمارا اپنا ضمیر بھی ملامت کرتا ہے کہ کل میں کیا کہہ رہا تھا، آج مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے. تو عوام کے اندر بھی ہمیں اس چیز کو بیدار کرنا ہوگا، اور اس میں سب سے زیادہ کردار ہر شعبے کا، سیاسی لوگ بھی، سماجی بھی، اور ہمارے علماء کرام بھی بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور تعلیم کا شعور، ہمارے یہاں معاشرے میں تعلیم کی بہت کمی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دینی بھی اور دنیاوی بھی دونوں شعور جو ہے کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم پر عوام کو توجہ دینی چاہیے. ماں باپ کو اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیم کی طرف راغب کریں اور دنیاوی تعلیم کی طرف راغب کریں. بہت شکریہ. بالکل آگے بڑھیں گے. سید حمزہ زیدی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور خاص کر کے سید زیدی جو حمزہ زیدی ہیں ایچ اے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے یہ ہمارے پاس آج موجود ہیں. سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے آپ کو سید حمزہ. ظاہر ایچ اے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ایک پروجیکٹ بہت اچھا جو کہ ڈاکٹریٹ سوسائٹی کے نام سے جو ہے بن رہا ہے، کیا کیا خاصیتیں اور کیا کیا لے کر آئے، عوام کی مشکلات کو کیسے حل کر رہے ہیں؟ بھائی ہمیں تو بتائیں سیکیورٹی کے کیسے انتظام ہے؟ السلام علیکم. پہلے تو آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. فردر مور اس سے آگے بڑھو، پہلے اپنے پاس جرنی بتاتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے 4 سیزن فارم ہاؤس فیز 1 فیز 2 ڈیلیور کر چکے ہیں، جہاں پہ لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد فردر مور آگے بڑھے تو ہم نے اپنا ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا کراچی ڈریم پلاس، جو کہ پورا ہول سولڈ آؤٹ ہے. اس کے بعد ہم نے ہیلتھ سٹی اسٹارٹ کیا ہے، جس پہ بھی رائٹ ناؤ کام چل رہا ہے، ورکنگ چل رہی ہے ساری. آپ کو فزیکلی انڈورس بھی کر سکتے ہیں. رائٹ ناؤ ہم نے اسٹارٹ کیا ڈاکٹر ہاؤسنگ کے نام سے پروجیکٹ. کافی ڈاکٹرس کی ریکوائرمنٹ آ رہی تھی کہ پروجیکٹ ہمارے لحاظ سے کوئی اسٹارٹ کرا جائے، کیونکہ ہر کسی کی سوسائٹی ہے، مرچنٹ نیوی بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، پولیس کی بھی ہے، رینجرس کی بھی ہے، آرمی کی بھی ہے الحمدللہ. مگر کسی بھی جو ہے ڈاکٹر کی کوئی سوسائٹی نہیں ہے ایون دو پورے کراچی میں، جس میں نے انیشیٹو لیا، اور الحمدللہ اس کو ہم پائے تکمیل پہ لے کے جا رہے ہیں، اور سارے کام ہمارے چل رہے ہیں وہاں پہ. زبردست. اچھا یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ اب وہاں رہائش پذیر لوگ ہیں اس وقت؟ ابھی تو رائٹ ناؤ نہیں، سارا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کے حساب سے ہی ساری چیز، کیونکہ ابھی رائٹ ناؤ جو ہے پلاٹ اگر کوئی لینا چاہے گا تو کتنے گز کے پلاٹس ہیں وہاں پہ؟ 120 گز کے ریزیڈینشیل پلاٹ ہیں، 240 کے ریزیڈینشیل پلاٹ ہیں، اور 100 گز کے کمرشل پلاٹ ہیں. اور اگر آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو وہی آپ کے جو 2 آفیسز ہیں وہاں پہ وزٹ کرنا ہوگا. ہمارے مہمان میں آفس ہے اور ہمارے ایئرپورٹ کا اپوزٹ آفس ہے. باقی فردر مور آپ ہمارے ویب سائٹ بھی چیک کر سکتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، زبردست. اچھا اس کے علاوہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مختلف سوسائٹیز بنی ہیں، کبھی پانی کے مسائل ہو رہے تھے، کبھی گیس کے مسائل ہو رہے تھے، کہیں بجلی کے بڑے مسائل ہو رہے ہیں. بالکل. تو اس کے حل کے لیے کیا کیا ہے؟ الحمدللہ ہم ساری چیزیں آن بورڈ کری ہوئی ہیں، اور آپ کو فزیکلی جب آئیں گے انڈورس کریں گے ساری چیزیں.
तो ये सारी चीजें। और अक्सर कहते हैं खुर्द बुर्द का मामला होता है, वो फाइल वगैरह का बड़ा चक्कर नजर आ रहा होता है, तो इन सारी चीजों में भी सेफ्टी है। आमतौर पर बिल्डर हजरात जो होते हैं फाइल में जो कोई ना कोई मामला कर रहे होते हैं, मगर हमारा क्लाइंट ओवरऑल पूरी दुनिया में कहीं बैठा है, में एक्सेस कर सकता है। वो कैसे उसका जवाब ये है कि हमारे पास वेबसाइट पे NIC नंबर आप एंटर डालेंगे, आपकी सारी लिस्ट लिस्ट हो जाएंगी। अगर मेरे पास कोई प्लॉट लिया हुआ है तो एक प्लॉट का एक ही मालिक रहेगा वो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कहीं भी बैठे मुझे एक्सेस कर सकते हैं आप। क्या बात है भाई, जबकि पूरे ओवरऑल कराची में कोई भी बिल्डर आपको नहीं दे रहा है। ये हमारी USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा यही है। बेहतरीन। ठीक है, यानी सिटी में जो हम मसाइल देख रहे हैं, पानी के, बिजली के, गैस के, ये सारे मसाइल सिक्योरिटी के वहाँ नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी, ये सब सहूलत आप दे रहे हैं। और ये डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, मतलब जो डॉक्टर नहीं वो नहीं आ सकता? नहीं, ऐसा नहीं, डॉक्टर नहीं आ सकता। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं नहीं आ सकती वहाँ? नहीं, ऐसा नहीं। क्या है ये, क्या इसके बेसिकली मैंने फिर वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि सबकी सोसाइटी टीचर्स की भी है, जजों की भी है, पुलिस की भी है, रेंजर्स की भी, आर्मी की भी है और मर्चेंट नेवी की भी है। तो जरूरी नहीं है कि जो जिस कैटेगरी का वो उसमें लाया करता भी हो। टीचर सोसाइटी में 9% टीचर भी नहीं रहते हैं, ये मार्केट सर्वे है। तो जरूरी नहीं है जो जिस सोसाइटी का वहाँ पे लाए, मगर इसके तहफ़्फ़ुज़ात क्या होते हैं कि एक साफ सुथरी सोसाइटी होती है, हर बच्चा चाहता है कि मेरे जो है बच्चे अच्छे परवरिश करें और साफ सुथरा माहौल हो। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। एक अच्छे माशरे में अगर आपको अपने बच्चों को तरबियत देनी है, अच्छे से आगे बढ़ाना, तो एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करना भी जरूरी है और उसके साथ साथ वहाँ पे रह के अपने बच्चों के साथ जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, क्योंकि बिल्कुल बस अब इजाज़त का वक्त है, तो मैसेज कह रहे थे, तो मैंने सोचा मैं जो अभी सर ने एक बात की थी उसी से निकालते हैं, उसी हवाले से छोटा सा एक मैसेज दे दीजिएगा। ये कहते हैं कि जी इबादत का महीना है ये हमारा, और ख़िदमत भी करें और इबादत भी करें। मैं थोड़ी सी परेशान होती हूँ, क्या अल्लाह ताला ने इबादत और ख़िदमत को अलग अलग बनाया है, या ख़िदमत भी इबादत ही के ज़ुमरे में आती है, उसको इबादत ही काउंट करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए, दो चीज़ें होती हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह के अंदर इबादत आ जाती हैं, हुकूकुल इबाद के अंदर जो है ये सारी की सारी खिदमत आ जाती हैं। अलबत्ता इस आखिरी मिनट के अंदर बतौर ताकीद के मैं एक जुमला इरशाद करना चाहता हूँ, वो ये है ताकीद के तौर पे कि रंगत, लिसानियत, असबियत, कौमियत की बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा करना, मुश्तइल और बरांगेख्ता करना, और फिर जो है इस बुनियाद के ऊपर दहशत गर्दी फैलाना, ये नाजायज़ और हराम है। लिहाजा तमाम नौजवानों को ये गुजारिश करनी चाहिए उनसे कि वो इन चीज़ों से बाज रहें और मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें। ठीक है, तो जाने का वक्त है, बिल्कुल एक अच्छा सा मैसेज आप भी दे दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की मुफ्ती साहब ने। मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम को सुधरना चाहिए, सुधरना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, और हमें एक दूसरे का एहतराम भी करना चाहिए, जो हम नहीं कर पाते। बदकिस्मती है कि हमें सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि हमें शाइस्तगी और मोहब्बत का रवैया रखना चाहिए, और हमें तकसीम नहीं होना चाहिए, और जो तकसीम करते हैं उन पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि हम तकसीम क्यों हों। हम सब मुसलमान हैं और हम एक इस्लाम के झंडे के नीचे आए। हम कौमियत में तकसीम हो जाते हैं, जिससे मुल्क को भी नुकसान होता है और हमें ज़ाती तौर पर खुद भी नुकसान होता है। तो हमें तकसीम नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हम एक हैं, हमें एक ही होना चाहिए, और इसमें कोई रंगो नस्ल नहीं। हम एक ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें काले और गोरे का कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें सब महसूस करना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। यही हम सबकी जिम्मेदारी है। बेहतरीन। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिर में जाते मैसेज यही है कि आप लोग आए इंशाल्लाह विजिट करें, और हमारे जितने भी क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह विजिट करके सेटिस्फाई होंगे, और हमारा 3D मॉडल ऑफिस में रखा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें वाकई फिजिकली इंडोर्स करें, विजिट ज़रूर करें। ठीक हो गया। और जाते जाते एक दफ़ा हम थैंक यू कर लें अपने स्पॉन्सर्स का। बिल्कुल जी, हम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। रूह ज़मज़म, आपका बहुत शुक्रिया कि आपका ताउन हमारे साथ रहा है, और इसी तरह HA बिल्डर्स, आपका बहुत शुक्रिया, और फवाद सिद्दीकी जिसका अटायर मैंने आज वेयर किया हुआ है, आपका भी बहुत शुक्रिया। आयशा इरफान जो कि हुरा टेक्नोलॉजीज को डील कर रही हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुश्क हरम कुटोर, रफ़ाया पाकिस्तान, रिवाद कुकिंग ऑयल, अलसफ़ा हेयर ऑयल एंड सफ़िया ज्वेलर्स, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम नाजरीन, हाजरीन, सामईन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। कोई गलती हो तो साथ साथ तस्वीर भी कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल भी इसी वक्त इसी चैनल पर आपसे फिर से मुलाकात होगी, और जाते जाते मोहम्मद सुमैर सिद्दीकी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें।
میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والے، وہ دربار سچ مجھے میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیال